ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਰਚੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਨੰਨ ਪਿਆਰੇ ਸੇਵਕ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਭਾਵ ਦੂਸਰੇ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਸਾਇਆ ਸੀ ਨਗਰ, ਇੱਥੇ ਵਸਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਬੈਠ ਕਹੇ ਅੰਗਦ ਸੰਗ ਬਚਨਾ ਪਾਰਿ ਉਪਕਾਰ ਜਿਨੈ ਮਨ ਰਚਨਾ ਅਬ ਤੁਮ ਜਗਤੇ ਉਦਾਹਰਨ ਕਾਰਨ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਸ਼ੁਭ ਕਰੋ ਸੁਧਾਰਨ। ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੈ। ਮੂਲ ਹੁੰਦਾ ਮੁੱਢ, ਜੜ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਦਰਖਤ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਹ ਮੈਂ ਕੁਝ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਪ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਲੜੀਵਾਰ ਲਿਖਵਾਈਆਂ। ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਰਚੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਪਹਿਲੀਆਂ 4 ਪੋਥੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਵੇਗਾ, ਇਹ ਪੋਥੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ। ਤੇ ਜਦ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਨਮੱਤੀਏ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਨਮਤ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਚ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾਨਕ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੋ ਪਿਛਲਾ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ
कोई इंतजाम करिए। की सिखा? जिमें पहले चारा गुरुआं ने ते आप जी ने बाणी रची है ते पिछे सब दे नानक पद वरते है, उसे तरह मेहरबान पुत्र पिरथीए दा तिनपी बाणी बहुत बनाई, भोग श्री नानक का पाई। पिरथी चंद दा पुत्र जिहड़ा है ओह भी बाणी रच रच के ना पिछे नानक शब्द लिख दिंदा है ते लिख लिख किताबां रखी जांदा है, ते आउण वाले समय विच दुनिया नूं भुलेखा पै जाना है। पता नहीं लगना भी किहड़ी बाणी सच्ची है ते किहड़ी कच्ची है। तो फिर धन गुरु अर्जन देव जी ने अपने समय दे विच फिर वो चारे पोथियां लिया करके श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की रचना की, जिसका पहला नाम बीड़ साहिब है। बीड़ का मतलब होंदा बीड़ना, इकट्ठा करना कुछ। सारे सतगुरुआं ने अपने समय के अंदर अपनी हयाती के अंदर जब वो दुनिया में सन अपने अखां के सामने ही सारे कारज किए है। ये नहीं कि उन्होंने जान तो बाद किसी होर सिख ने किए होण। ते जदों सतगुरु नानक देव महाराज जी करतारपुर विराजमान है, लहणा जी अनिन प्यारे सिख इन्हां ने काफ़ी समय तो सेवा करते आ रहे हैं। तो एक दिन उन्होंने प्रेरणा की, पुत्र आ मैं कुछ तुहानूं बाणी लिखाउंदा, इनू लड़ीवार करो, लिखना करो। जो सब तो पहला मूल मंत्र लिखो जो सृष्टि के उधार वास्ते असी लैके आंदा है। मम बानी गुण खानी देखा, लीजै बीनै बीन बसेखा। फिर जिहड़ी आ पोथी है मेरी बाणी की रची हुई, इनू खोज पढ़, चुन चुन के हमें सनावत जाओ उचारा, सानू सुनाओ। नाल कागज कलम कापी लै करके लहणा जी बैठ गए, तो सतगुरां दे कदे कोई किते कोई कदे उचारे शब्द पढ़ के सुनाउंदे है। बाबा नानक ने 4 उदासियां लाइयां, तो उन्हां उदासियां राण जिथे जिहो जी लोड़ सी शब्दां दी उचारण होया, वो सारे उन्होंने पोथी विच लिखे हुए सन। इसका पता लगता है कि जदों सतगुरां नूं काजी पुछदे है कि तेरी किताब दे विच की लिखे है, पुछन फौल किताब नूं हिंदू वड्डा कि मुसलमान होई। सानू दस भी हिंदू धर्म वड्डा है कि मुसलमान वड्डा है। तेरी किताब जो कच्छ च लई आ, जदों हाजियां का रूप धार के मक्के नूं गए सीगे, कूजा हथ किताब कच्छ, भाव जरूर कोई पोथी नाल रखते सी लिखण वास्ते, कापी किताब। ते पुछन फौल किताब नूं हिंदू वड्डा के मुसलमान होई। बाबा आखे हाजियां शुभ अमलां बाझों दोनों रोई। चंगे काम करन तो बगैर दोनों ही रोंदे जाणगे। तो लहणा जी नूं वो किताब दिती है जिहदे विच पातशाह जी ने अनेकां तरह के शब्द उचारे, जगह जगह ते जाके। कहंदी है मैनूं पढ़ के सुनाओ। लहणा जी ने वो कापी वो किताब खोली है। बहुत सारे सतगुरां दे शब्द जो उन्हां दा मोदी खाना है, मोदी खाने दीयां बहियां तो भी मिलते हैं। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਬਈਆਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਲਿਖੇ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਔਰ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਹੀ 'ਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਵਾਲੀ ਬਹੀ ਤੋਂ। ਭਾਵ ਖੈਤ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। हमें सुनावत जाओ उचारा, बंद मिर्जाद करो उपकारा। मर्यादा हुंदा लड़ी,
इस नूं एक मर्यादा विच लिखो सारी बाणी नूं। फिर सब तो पहला जपजी साहब जी का जिहड़ा है बाणी ये लिखनी शुरू की पातशाह जी ने, जो सिद्धा नाल गल्लां बातां होईयां सी शुरू तो। विचे प्रश्न है, विच ही उत्तर है। सिद्ध कहते जी तीर्थां ते इशनान करते कीते आ मनुख का भला हो जाऊगा, कहते ना सोचै सोच ना होवई। मनुख कित्थों पवित्र हो जाऊगा जिन्ना चिर अंदर दी मत नूं नहीं बदलदा, बाहरों नहाउण दा की फायदा। भावें लखां वारी नहाले, जे सोची लख वार। अगला उन्हां दा प्रश्न होना कि चुप करिया मौन धारिया मिल जूगा, कहते ना चुप होऊगा किवें, चुप है चुप ना हो बई। अंदरों फुरने तो बंद नहीं होए, तो जिन्ना चिर फुरने बंद नहीं होए कला मूँह बंद करिया की बनूगा। जे लाए रहा लिवतार। भाव इस तरह ये सारी जपजी साहब या सारी बाणी ना किते कोई सवाल पैदा होए तो बाणी उन्हां दा हल है, बाणी उन्हां दा जवाब है। गुरु नानक देव जी कहन लगे लहणा जी नूं करतारपुर साहिब विखे, कहन लगे पुत्र ये सारी बाणी नूं लड़ी बना के लिखना कर गए आपां। बन मरजाद करो उपकारा, हम ते जो जन में पश्चाता। तू भी ते साडे तो बाद जिहड़े होर जीव जन्म लैणगे, तिन सब को होवे गति दाता। ये जिहड़ी बाणी है जिन्हों असी अज जपजी साहब कहने हैं, वैसे नाम जप है इहदा, जी आपां सत्कार नाल लाउणे आ नाल। तो ये जप बाणी जो है ये आउण वाले समय में जो साडे तो बाद पैदा होणगे उन्हां दे उधार दा भी कारण बनेगी, उन्हां दा भी भला होवेगा। तिन सब को होवे गत दाता, उन्हां दी मुक्ति करन वाली होवेगी। ज्यों जहाज चढ़ सागर तरही, त्यों तेह पढ़ संसार उधरही। जिवें कोई संसार समुंदर तो पार होने वास्ते समुंदरी बेड़े में जां जहाज ते बैठ जावे ते पार हो जाता है, इस तरह ये साडी बाणी जिहड़ी है लहणा जी लिखना करो लड़ी बना के इनू मर्यादा दे नाल। जीवां दी मुक्ति इस बाणी रूपी जहाजे चढ़ के होवेगी, संसार समुंदर चो पार हो जाणगे। स्वर्ण श्री अंगद बंधन ठानी, गुरु अंगद देव जी ने हथ बन के 7 बचन कहा। सरवण कीते बचन बाबे नानक दे, कहने जी 7 बचन। बीन बीन नीकै गुरबाणी, ते फिर वो जिहड़ी पोथी बाबे ने दिती लहणा जी नूं उन्हां ने पढ़नी कीती, सुनाउणी कीती। फिर उन्हां विचों शब्दां नूं चुन चुन के उन्हां दी लड़ी बनाउणी शुरू कीती, जिवें मोतियां दा हार परोई दा। कहो सतनाम श्री, चुन चुन के इउं आन सुनावन कीन सुहानी। सारियां पौड़ियां लड़ीवार लिखियां गईयां। तब जप नाम धरियो गुण खानी, ते बाबे नानक जी ने इहदा नाम धर दिता जप, जपन जोग। जप शब्द बाणी भी जपजी साहब मूल मंत्र तो बाद आउंदा है, क्योंकि पहला मूल मंत्र आया, जपजी साहब मगरों रचिया गया। तो जप शब्द है जिहड़ा जब मूल मंत्र पूरा हो जाता है, गुर प्रसाद जप। तो जप शब्द जिहड़ा देहली दीपक शब्द है। जप दे बहुत अर्थ बनणगे। जप दा मतलब बाणी दा नाम, पहला अर्थ इहदा। दूजा जप दा मतलब है ये जपन योग है। जदों गुरु नानक देव जी मूल मंत्र लैके आए तो उन्होंने देखिया दुनिया की करती आ, जपदी आ। किनू जपदी आ भी? ये जी गंगा नू, जमुना नू, गऊ माता नू, आदि आदि पशुआं पंछियां नू रब बना के बैठी है। करते नू भुल के किरतां नाल जुड़ गई आ। बाबे ने निगाह मार के देखी, बाबा देखा ध्यान धर जलती सा पृथ्वी दिसे आई। ये तो गलत जुड़े हुए ना, इन्हां नू सही जोड़ना चाहिए।
जप की डायरेक्शन दी बाबे नानक ने। अगला श्लोक, आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। ओनू जप जिहड़ा सदा रहन वाला है, जिहड़ा सब तो पहला सी, जिहड़ा अज भी है, जिहड़ा कल नूं भी रहेगा, सदा रहन वाला है। तो इस तरह सतगुरु नानक देव जी ने जपजी साहिब का पाठ संपूर्ण लिखवाया। अपने अनिन्न प्यारे सेवक लहणा जी तो भाव, जिन्होंने बाद विच उन्होंने अपना रूप गुरु अंगद बना दिता। धन गुरु अंगद दे महाराज जी ने बचन सुने और लिखना शुरू किया है। बीन बीन नीके गुरबाणी आन सुनावन कीन सुहानी, तब जप नाम धरियो गुण खानी, श्री मुख ते महिमा पुन भाखी। जदों जपजी साहिब का पाठ संपूर्ण बन गया ना, श्लोक तक, जिसकी कथा आपां कल ते परसों दो दिन की, श्लोक दी एक श्लोक मूहरे लाया, आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक मगर लाया ते विचाले 38 पौड़ियां टोटल मिला के 40 हो जाते आ, ते मूल मंत्र मिला के 41 हो जाते आ शब्द सारे। इस तरह इस पाठ जपजी साहिब का तैयार हो गया। सतगुरु अंगद देव जी ने सतगुरां दी हजूरी च बैठ के बाबे नानक जी ने अपनी निगाह दे हेठां कोल बिठा करके जपजी साहिब तैयार करवाया। फिर सतगुरु पातशाह जी ने की कीता, धन गुरु नानक देव महाराज जी ने फिर की कीता, ये जपजी साहिब की महिमा दसनी शुरू की। आप जी इतिहास सुनोगे, सारे इतिहास विच तुसीं वेखोगे, जदों सिखां दीआं शहीदियां होईयां, उन्हां समयां दे विच जिहड़ा है शहीदी होण तो पहला सिख ने जपजी साहिब का पाठ जरूर किया है। भाई मती दास, भाई सती दास, भाई तारू सिंह, बंद बंद कटवाउण वाले भाई साहब भाई मनी सिंह जी, सिखां ने जपजी साहिब के पाठ नूं मुख रखिया, क्योंकि ये गल बाबे नानक ने उस दिन अपनी महिमा दसी है जपजी साहिब के पाठ की। इस करके 10वें पातशाह जी ने इस ते मोहर लाई। फिर बिन जप जाप जेवै जो, बिन जप जाप जपै जो जेवै प्रसाद। कहंदे तड़के उठ के पहला जपजी साहिब का पाठ कर लिया करो। जिहड़ा जपजी साहिब का पाठ करे तो बगैर भोजन खांदा, विष्टा का कीट होए, जन्म गवावे बाद वो गंदगी का कीड़ा बनता। कहंदे तड़के उठ के रब का शुक्र करिया करो, पहला जिन्हें नवा दिन दिता है ते शकण नूं भोजन दिता है। सो क्यों विसरै जिन सब किश दिया, सो क्यों विसरै जे जीवन जिया, सो क्यों विसरै जे अगन में राखै। इउं जपजी साहिब दियां 40 पौड़ियां, 38 पौड़ियां समेत 2 श्लोकां दे 40 ते मूल मंत्र सारा लिख के जपजी साहिब का पाठ तैयार हो गया। फिर सतगुरु नानक देव जी ने अपने बचनां विच उस वेले जो महिमा दसी जपजी साहिब के पाठ की, तब जप नाम धरियो गुण खानी, इहदा नाम जप रखिया गया। जप डेली दीपक शब्द है, दोने पासे प्रकाश करता है। जिवें गेट ते दीवा रख दईए, अंदर बाहर चानण करता है ना, ये जप उतले मूल मंत्र नाल भी जुड़िया, हेठले श्लोक नाल भी जुड़िया। उतला मूल मंत्र वाच है परमेश्वर का, परमेश्वर ने उचार के नानक जी नूं सुनाया। ते हेठला श्लोक आद सच जुगाड़ सच है भी सच नानक होसी भी सच, ये उचारण किया बाबे नानक जी ने साडे वास्ते। कहो सतनाम। मूल मंत्र विचों हुक्म दिता है बाबे नानक नूं, नानक जा दुनिया नूं मेरे बारे दस। तां गुरु प्यारिओ,
गुरु नानक देव जी कहते मैं तुहाडे बारे किवें दसां महाराज, मैनूं तुसीं दसो पहलां। फिर कहते सचखंड च बचन होए, कहते आ नानक पहला मैं तेरा गुरु बनदा हाँ, तैनूं मंत्र दिंदा, क्योंकि संसार दी रीत है पहला गुरु वाला बनना चाहिए। ते गुरु नानक दे गुरु परमेश्वर आप बने आ, कहो सतनाम श्री। और गुरु बन के उन्होंने फिर एक ओंकार सतनाम करता पुरख, मैं एक हाँ, मैं सदा रहन वाला हाँ, कुदरत विच समाया हाँ, मैं सत हाँ, मेरा नाम भी सत है, करता पुरख मैं सृष्टि नूं बनाउण वाला हाँ, निर्भौ निर्वैर मेरे दो गुण है, मैं डरदा नहीं डराउंदा नहीं, अकाल मैं काल तो समय तो बाहर हाँ, मौत तो परे हाँ, मैं मरदा नहीं, अकाल मूरत आजूनी मैं माँ प्यो दे राही नहीं जमदा गा, मैं प्रवेश करदा ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ, ਸਵੈ ਭੰਗ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਆਪ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਆਪੇ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਨਾ, ਆਪੇ ਗੁਪਤ ਹੁੰਨਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਜਾ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਬਣ, ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਧਰਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਤੂੰ ਬਣ। ਮੈਂ पार ब्रह्म ते तू गुरु ब्रह्म होया, कोई सतनाम। वैसे तेरे च ते मेरे च कोई फर्क नहीं हैगा, मैं पार ब्रह्म हाँ ते तू गुर ब्रह्म है। तो उथों यह मूल मंत्र लैकर के गुरप्रसाद तक बाबा नानक जी मातलोक विच आए। मातलोक की हालत वेखी ते सानू हुक्म दिता जपो। तुसीं किहनूं जपदे हो? तुसीं जिहनूं जप रहे हो ये छड्ड दिओ, ये गलत है। मारे किहनूं जपीए? कहंदे ओहनूं जिहड़ा आद सच सब तो पहलां सी। जुगाद सच जिहड़ा सारे जुगां दे विच सही सलामत उसे तरह रहा है, भी सच जिहड़ा अज भी है। नानक होसी भी सच जिहड़ा सदा रहण वाला है। गल क्लीयर हो गई। जिहनूं तुसीं जपदे हो ख्याल करके देखो, वो कल नूं खत्म तो नहीं हुंदा, जे खत्म हुंदा ते छड्ड दिओ, कहो सतनाम श्री। जे खत्म हुंदा है ते छड्ड दिओ, असीं उस नाल जुड़ीए जिहड़ा सदा रहण वाला है। फिर अगे सिद्धां ने, जग्यासुआं ने, सिखां ने बाबे नानक जी नूं उदासियां दौरान थां थां ते बचन कीते, प्रश्न कीते, बेनतियां कीतियां। फिर जपजी साहिब दीयां पौड़ियां उचारण होईयां ते जपजी साहिब दा पाठ बना के इहदा नाम जप रखिया गया। और जपजी साहिब दा पाठ तैयार करके इहदा महात्म दसदे आ धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज। श्री मुख ते महिमा पुन भाखी, जे नर होवे सिੱਖੀ अभिलाखी। जिहड़ा सिੱਖੀ दा जग्यासू है, अभिलाखी हुंदा है इच्छा वाला। अमृत अभिलाखी जिहड़े अमृत छकना चाहुंदे है, वो सिੱਖੀ दे अभिलाखी है। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਉਤਰ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ। ਨਿਸਮੈ ਉਠੇ ਸੇ ਕਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨਾ, ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ। ਜਪ ਪੜ ਹੈ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਸਾਵਧਾਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੇ। उस तो बाद अगलियां बाणियां जिमें जिमें तैयारी होंदियां गईयां उवें नाल जोड़ते गए गुरु। सब तो पहला जपजी ते रह रास ही तैयार हुई सी। रह रास दे पहले शब्द सो दा तेरा कहा सो कर किया, ये रह रस का शब्द सी। अज भी इसनूं असीं सोदर कहंदे हां। जब रह रास का समा आरंभ हुंदा है ना शामां नूं, ते रागी की लाउंदे न? सोदर की चौंकी। भाव पहला वो सोदर पढ़ते न, फिर सिख शुरू करता है सुन वड्डा आखै सब कोय, केवल वड्डा डीठा होए इथों। फिर अगली रह रस चलती है जो अज सतगुरां ने तैयार करती, जिहदे नाल चौपी साहिब लगी है, होर अनेकां सलोक शब्द पंजवें पातशाह जी दे, चौथे पातशाह जी दे लाए गए हैं अगे तो अगे। अखीर ते जाके आनंद साहब तीजे पातशाह जी का लाया गया। खैर
सतगुरु पातशाह जी कहते जेड़ा सिख बनना चाहुंदा है तड़के उठ के इशनान करके पहला जपजी साहिब का पाठ करे। उस वेले की गल करदा जदों बाबा जी ने आप हुक्म दिते, जप पढ़ है एक चित सावधाना, अर्थ विचार करे और माही मुक्त होए सो संशय नाही। हुण कई बारी असीं कहने आ जी जपजी साहिब पढ़न तां बह जाने आ, पर जी नहीं लगता, मन ही नहीं खड़दा, मन किते होर ही फिरदा रहिंदा। ते बाबे ने एक जुगत दसी, कहंदे जपजी साहिब नूं पढ़दे होए मन की ड्यूटी ला दिओ बई तू नाल नाल विचार कर भी इहदा अर्थ की आ। भजदा मन है ना, सुरत भजदी है, सुरत की ड्यूटी ला दिओ अर्थ विचारन ते। तुहानूं आवे च ना आवे, आउण भी लग जाणगे हौली हौली, पर एक जुगत है जे तुसीं सुरत नूं शब्द दी विचार च ला दिओगे ना ते तुहाडे फुरने खत्म होने शुरू हो जाणगे हौली हौली। कहो सतनाम श्री। कहन लगे जे कोई इस जपजी नूं पढ़दा होया नाल विचार भी लवे, कोई शंका नहीं है, भरम नहीं है, वो जरूर मुक्त होवेगा। जप जी सेवन प्रीत सुजाही, मम समीप प्राप्त होए ताही। जेड़ा रोजाना जपजी साहिब का पाठ करेगा वो अखीर ते मेरे कोल पहुँचेगा, मेरे समीप नेड़े आ जाएगा, वो मेरे नेड़े होवेगा। देखो ना, धन धन श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज अज एक दिन बैठे बैठे कहंदे, सिखो कोई मैनू जपजी साहिब का पाठ सुनाओ। उस दिन भी महात्म ही दसना सी ये बाणी का, जपजी साहिब का। कोई शुद्ध जपजी साहिब का पाठ सुनाओ मैनू। जो हुक्म होया ते कुछ मिनटां दे बाद जद कोई ना उठिया तो भाई गोपाला जी ने हथ बन के पुछया, महाराज आग्या होवे जे? कहंदे आ जा, बैठ जा। सिख बैठ के कहंदे जपजी साहिब जी का पाठ सुनाउण लगे आ, सतगुरु सुनन लगे। ते जदों जपजी साहिब ऐन समाप्ति दे नेड़े पहुँच गया, एक दो पौड़ियां बाकी रह गईयां, और सतगुरां दा सुभाअ है किसे नूं ओहदे कर्म दा फल जल्दी देना। ते पातशाह सोचण लगे अपने सुभाअ मुताबक, बई हुणे जपजी साहिब दा पाठ हो जाना पूरा, ते मैं सिख नूं इहदे बदले विच की देवां। सोचदे आ मैं सिख नूं जपजी साहिब दे पाठ दे बदले मातलोक दा राजा बना दियां। फिर कहंदे नहीं, थोड़ा है, जपजी साहिब दा महात्म इदों वध है, ये राज भगता खत्म हो जाते हैं। फिर गया ख्याल गया भी देवलोक दा इंद्र दा राज ही दे दिया इसनूं। फिर जजमेंट की भी नहीं, ये भी थोड़ा है, ये भी खत्म होने वाला है। इंद्र कई बारी मरदा, कई बारी जमदा है। कहो सतनाम श्री। पर जपजी तो मुक्त करने वाला है। गल मुकाओ के सोचते सोचते पातशाह ये फैसले ते पहुंचे कि मैं इनू आपदा रूप ही बना लवां। जो जपजी साहिब का पाठ करेगा, धन गुरु नानक देव जी कहंदे जपजी सेवन प्रीत सुजाही, जेड़ा प्रेम दे नाल जपजी पढ़ेगा, मम समीप प्राप्त होए ताही, ओनू मेरी समीपता प्राप्त हो जाएगी, मेरे नेड़े आ जाएगा। ते हरगोबिंद साहिब जी ने सोचा मैं इनू आपदा रूप ही कर देवां, इनू गुरता गद्दी दे दिन्ने अज। कहने धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी उहदे जपजी साहिब का सलोक पूरा होने तो पहला पहला उठन लगे। मैं इधरों मैं उठ खड़ा ते मैं कह दूँ आ जा गोपालिया, साम दुनिया सारी तेरी आ, हुण तू गुरु होया। कहो सतनाम श्री। जदों पातशाह थोड़े हल्ले आसन तो ते भाई गोपाला जी का भी ध्यान हल गया। सारिया पौड़ियां दो तीन पौड़ियां नूं छड्ड के वधिया जुड़ के पढ़ियां, कोई फुरना नहीं उठिया। पर जदों ही गुरु साहब हले तो भाई गोपाले का भी अंदरों सुरत हल गई। सोचन लगे गुरु साहब किते जांदे आ, जे पूरा पाठ सुन के मैनू पुछदे बोल गोपालिया की देवां, ते मैं इन्हां तो सोने की काठी वाला घोड़ा मंग लैंदा। कहो सतनाम। पर ये तो किते चले आ। पातशाह मुड़ के उत्थे फिर बैठ गए, क्योंकि हिरदे दियां बुझदे आ।
भाई गोपाला जी ने श्लोक पढ़ता, जिनी नाम ध्याया गए मशक्कत घाल, नानक ते मुखोजले केती छुट्टी नाल। नमस्कार करती। फतेह दा 10वें पातशाह चलाया, उदों पहला नमस्कार ही हुंदी सी, वंदना जोदड़ी। पातशाह कहने वाह बई वाह गोपालिया, बहुत सुंदर पाठ सुनाया, बोल तैनू की देवां हुण। मैं तो घोड़े ते बिर गया, पहला बुझ ही लिया हिरदे चों, इस करके हुण रहण दिओ गद्दी देण नूं। कहो सतनाम श्री। कहने हाँ बई गोपाला जी, की दईए तुहानू इहदे बदले? हुण तैनू दस, जो मंगेगा वो देवां। कहंदे नहीं महाराज कुछ नहीं चाहिदा। पातशाह कहंदे नहीं मंग लै। कहंदे नहीं जी कुछ नहीं चाहिदा। कहंदे मंगी तां जाना है, जे तू सारा पाठ पूरा कर दिंदा ना, मैं तैनू सारे घोड़ियां हाथियां दा गुरता गद्दी दा मालक बना देना सीगा। तू इक्को ही घोड़ा मंगी जाना, सोने की काठी वाला। कहो सतनाम श्री। फिर शर्मिंदा जा के नीवी पा ली। पता लग गया मेरे हिरदे की बुझ ली। कहंदे वो भलिया मानसा, मैं तो तैनू गुरता गद्दी देन लग्या सीगा, एक घोड़ा की सारे घोड़े उठ गए, हाथी सब कुछ तेरे बना देने सी अज मैं। कहंदा जी फिर तो चंगा ही होया। कहने तू अखीर ते जाके जी सुरत हिला के घोड़ा मंग लिया ना, सारा पाठ वधिया सुनाया, हुण तैनू घोड़ा ही दिन्ने आ। कहो सतनाम श्री। आम शायद कहावत भी बनी है, जे कोई लालची बंदा ना रजे फिर अगला कहना होर तैनू हुण मैं घोड़ा दे दियां यार। कहो सतनाम। एक कहावत भी दुनिया च बनी हुई है माल विच। धन गुरु हरगोबिंद साहब जी सिखां नूं कहंदे भी जिहड़े वो 5 घोड़े आए सी ना सोने दीयां जड़ाऊ काठियां वाले, उन्हां 4 घोड़े पातशाह ने सिखां नूं पहलां वंडते सी। खड़ा सी अजे, कहंदे जाओ घोड़े ते काठी पा के लियाओ। वो घोड़े ते काठी पा के लियांदी ते वो घोड़ा भाई गोपाला जी नूं दे दिता ते नाल जपजी साहब दा महात्म दस दिता कि इन्नी इहदी पावर ते कीमत महात्म है कि गुरु हरगोबिंद साहब सब कुछ देण नूं तैयार हो गए सी। कहो सतनाम सी। इहदे बदले च फिर भी घट नहीं रखे, बहुत सारी माया बस्तर घोड़ा बहुत कुछ दिता भाई गोपाला जी नूं। खैर ये गुरु साहब का एक सिरों पाओ है, बख्शिश है, कृपा है, पर जपजी साहब जी की बराबरी कोई नहीं कर सकता। 5 बाणियां की अलग अलग महिमा दसी है सतगुरां ने। जपजी साहब जिहड़ा है ये ब्रह्म ज्ञान की बाणी है। जब जपजी पढ़द्या पढ़द्या ब्रह्म ज्ञान हो गया तो आत्मा परमात्मा च मिल के उहदा रूप हो गई। जाप साहब जिहड़ा है परमेश्वर की सिफत की बाणी है। ते सवैये जिहड़े आ संसार के मोह चों उच्चा चकदे आ। सवैयां दा उच्चारण कर लो कि सारे संसार नूं मैं देख लिया, परमेश्वर के बराबर कोई भी नहीं है। जिन्ना नहीं जपिया परमेश्वर नूं, दुनिया विच तरह तरह की साधगिरी भावें कीती आ, वो एक रत्ती बिन एक रत्ती के एक रत्ती का भी जीवन नहीं उन्हां दा परमेश्वर दे नाल जुड़े तो बगैर। फिर अगे राजियां नूं ज्ञान दिंदे 10वें पातशाह कहंदे सरावग सुध समूह सिधान कै देख फिरियो कर जोग जति के सोर सुरादन सुध सुधारक संत समूह अनेक मति के सारे देश को देख रहे हो मत को न देखियत प्राणपति के। अगे राजियां नूं कहंदे हन माते मतंग जरे जर संग अनोपो तंग सुरंग सवारे कोट तुरंग कुरंग सिकोद तपाउन के गौन को जात निवारे इते भय तो कहाँ पे भूप ते अंत को नांगे ही पाए पधारे। भाव सवैयां दी जिहड़ी बाणी आ संसार नूं संसार दी मोह ममता चों बाहर कढ़दी है। चौपी साहब गुरु साहब दे बेनती आगे कि महाराज साडी इत्थे ते उत्थे दोही जहानी रक्षा करो। खड़ग केत मैं सरन तिहारी आप हाथ दै लिहो उभारी सर्ब ठौर मोहो सहाई दुष्ट दुख ते लिहो बचाई। सवैया अपना चौपी जिहड़ी है हर थां ते रक्षा मंगदी है। इस राही सिख बेनती करदा परमेश्वर अगे गुरु अगे। आनंद साहब जो गुरु ने बाह फड़ ली फिर आनंद ही आनंद है। तो आनंद साहब की बाणी ये दसदी है असली आनंद की है। आनंद ही आनंद साहब को कहे सारे कहते आनंद आ गया, अपने मुंडा हो गया आनंद आ गया। कहो सतनाम। कोई मिठा फल खा लिया आनंद आ गया बई बल्ले बल्ले। निक्कियां निक्कियां चीज़ों को आनंद कही जाती है। तीजे पातशाह कहते यह आनंद नहीं, आनंद उदे ही आऊगा जिदे गुरु वाले बन गए। कहो सतनाम श्री। मैं जानिया आनंद मैनू 65 सालों के बाद हुण आनंद आया जदों गुरु अंगद कोल आया मैं। कहो सतनाम श्री।
आनंद ही आनंद सब को कहे, आनंद गुरु ते जानिया, जानिया आनंद सदा गुर ते किरपा करे प्यारिया। कदों? जदों कर किरपा किलवे कट्टे, ज्ञान अंजन सारिया। ब्रह्म ज्ञान दे दिता जदों गुरु अंगद ने मैनू, अखां दे विच ज्ञान दा सुरमा पा दिता, ज्ञान अंजन सारिया। कहे नानक अंदरों जिनका मोह टुटा, तिनका शब्द सच्चे सवारिया। बोल बाणी बदल गई, उन्हां दी सुरत विच पैदा होने वाले शब्द बदल गए। कहे नानक एहो आनंद है, कहंदे आ आनंद है, ये आनंद गुर ते जानिया, यह आनंद मैनू गुरु तो मिलिया। कहो सतनाम सिंह। खैर जपजी साहब वल होइए। धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे लेनिया, जेड़ा इस बाणी नू प्यार दे नाल पढ़ेगा, ओह जेड़ा है मेरे कोल पहुंच जावेगा। सारी जपजी साहब की रचना करके किवें महिमा दसदे आ अगे। जपजी सेवन प्रीत सो जाही, मम समीप प्राप्त होए ताही, धरे कामना पढ़ है एक मन। कोई इच्छा धर के भाव मैनू आ चाहिदा ते कहंदे एक मन होके जपजी साहब पढ़ना शुरू कर दिओ, वो इच्छा पूरी हो जाऊगी। कहो सतनाम श्री। कहंदे वो इच्छा कामना होए संपूर्ण तेह की तत्शन। जंतर मंत्र पुण तंत्र महाना, भूत जे प्रेत दवैत बलवाना। ये चीज़ां उन्हां ते असर नहीं करनगियां जिहड़े जपजी साहब दा पाठ पढ़दे होणगे। कहो सतनाम सिंह। उन्हां ते कोई जंतर मंत्र तंत्र नहीं चलेगा किसी दा, कोई उन्हां जिहड़े भूत प्रेत डाकनी नहीं आवेगी। जपजी साहब ऐसी बाणी है। रात नूं सोहला साहब दा पाठ करके असीं अपने आपे दे उत्ते एक पहरा लाउणे आ ते जपजी साहब दा पाठ करके उन्होंने खोलिया जाता तड़के। कहो सतनाम श्री। इस करके मेरे प्रीतम जी कहते जे कोई जपजी साहब के पाठ नूं प्यार नाल पढ़े तो इन्हां चीज़ां दा तंत मंत ने जो होई तित चाख न लागे। उन्हां ते जंतरां मंत्रां दा असर नहीं होवेगा, उन्हां नूं किसे दी अख भाव नज़र नहीं लगेगी, भाव उन्हां ते इन्हां चीज़ां दा कोई असर नहीं होवेगा जिन्हां कोले जपजी साहब दी कला होवेगी, जिन्हां कोले जपजी साहब दा मंत्र होवेगा। ये महा मंत्र है। मूल मंत्र पहली पौड़ी जी नूं दुनिया कह दिंदी है, वो मूल मंत्र है। ते गुरु प्यारो वाहेगुरु गुर मंत्र है, ते जपजी साहब महा मंत्र है। कहो सतनाम श्री। सब तो वड्डा मंत्र है, ते किसी होर मंत्र नहीं चलेगा इहदे उत्ते कोई भी। अगे पातशाह लिखते हैं, ते समीत न आवे कोई, पठन प्रीत नित नर जह होई, मानुख देह जीव जिन पाई। जपजी साहब की इन्नी महिमा करदा है। कह लगे जिन्हां दी रोजाना आदत बन गई जपजी साहब करन दी, उन्हां दे नेड़े कोई नहीं आवेगा। सच जानियो सिखो जिन्हां ने मनुखा देही पाई है। जे वो जपजी साहब नहीं पढ़ते, जप परीत जप बहीन होवे बाद गवाई। जपजी साहब तो बगैर जीवन बेकार कर रहे हो, खराब कर रहे हो। पढ़ना चाहिए। सिखण जोग मंत्र गुर केरा, यह सिखां दे सिखण जोग मंत्र है, गुरु दा बख्शिया होया। नौ तरीक इतिउत नित सुख देत कनेरा। ये जपजी साहब इत्थे ते उत्थे दोहां जहानां विच सुख देण वाला बहुत ज़्यादा। होए सिख जब कंठ न कीनो, सिख होके जपजी साहब मूँह जवानी याद नहीं किया। नौ तरीक भेख तर लीनो, कहते फिर नाम दा ही सिख है जे जपजी साहब भी कंठ नहीं होया तेरे। इन्नी पातशाह जी ने जुगती दे नाल जपजी साहब की रचना की है ना। जे तुसी लगातार एक महीना पढ़ लो वेख वेख के, ओदियां कड़ियां पौड़ियां दियां आपे ही जुड़दियां जांदियां, अगली पौड़ी आपे ही शुरू हो जाती है। कुदरती रचना ही इस ढंग नाल कीती है बाबे नानक ने। कहंदे ओ सिख भी काहदा सिख है। 10वें पातशाह जी ने अगे जाके फिर अमर की महिमा दी। बिन पौहल केस धरे, कहंदे केस रखे आ, पग बन्नदा, दाड़ा रखे आ, सोहना लगदा, ऐसी गल नहीं। पर जिन्ना चिर अमृत नहीं छकदा कला भेख ही धारिया, हजे सिख नहीं बनिया तू। कहो सतनाम श्री।
बिन पौहल पेख धरे, बिन पौहल केस धरे, भेखी मूड़ा सिख। कहते मूर्ख अजे भेखी है। हाँ चलो भेख धारे है, अमृत भी छक लेना चाहिए, पौहल भी लै लैनी चाहिए है। बाबा नानक जी कहते हैं नौ तरीक भेख दा लीनो इसते और न कोबिद उची, जब सेवन एक मन होए सोची। जपजी साहब तो उची होर कोई भी रीति नहीं है सिख दे वास्ते, इस तो वड्डा होर मंत्र कोई नहीं है। जपजी साहब नाल जुड़ जाओ, रोजाना हर सिख जपजी साहब का पाठ जरूर करे। जे नितनेम करे तो वड्डी गल है, पर जपजी साहब की महिमा देखो मेरे प्रीतम ने किन्नी दसी है। काम तेन चिंता मन सुरतर, कर न सके आद तिल समसर। हिंदू मत ने कल्प बिरछ मन्निया, कहते ਉਹਦੇ थले बैठ जाओ जो मर्जी मंगो मिलदा। काम तेन गौ मंगी आ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾਗਾ। चिंता मणी हुंदी है, एक मणी हुंदी है, सप दे कोले मणी जिहनूं ਉਹ ਮਣੋਂ मिल जावे ते ਉਹਦੀ चिंता दूर हो जाती है। पर कहंदे बाबा जी कहंदे ये सारियां चीज़ां किसे कोल होण ते एक सिख दे कोल जपजी साहब दा पाठ होवे, वो लोग ओदे तिल मात्र भी बराबर नहीं पहुंचणगे। जपजी साहब दी इन्नी महिमा दसी मेरे प्रीतम ने। एक साध एक पिंड विच आया और आके उसने लॉसमेंट करवाती बई जेड़ा मेरे दर्शन करूगा ओनू मैं 1 साल का स्वर्ग दे दूंगा। आ दुनिया लाई लग है एवें ही तुर पैंदी है उठ के, सच नाल बहुत घट जुड़ते आ, झूठ नाल उदों जुड़ जाते आ। कोई छोटा जिहा बच्चा जपजी साहब का पाठ सुना देवे, मूल मंत्र सुना देवे, उन्होंने इन्ना प्रमोट नहीं करते। आ जवाक जे चुटकले पुठे सीधियां गल्लां गालां सुना सुना के लोगों को हसाउंदे आ, उन्होंने इन्ना प्रमोट करते हैं, इन्ना चकते हैं, इन्ना चकते हैं, रब ते चढ़ा देंदे आ। कहो सतनाम सी। की कोई तुसी मोबाइल के उत्ते बच्चा जपजी पढ़ने वाला या बच्चा छोटा जिहा बच्चा तुहानूं मूल मंत्र सुना देवे, माँ प्यो याद करवा देन, कि कदे उसनूं किसी ने पसंद किया, लाइक किया? किसी ने कहा मोबाइल ते भी बच्चे ने भी सोहनी बाणी गाई आ, हाँ वो जिहड़े जवाकां नूं गालां सिखा देणगे गाहां, मोबाइल ते बहुत कुछ आउंदा है, उन्हां दीयां गालां नूं प्रमोट करी जाती है दुनिया। को सतनाम श्री। इहदा मतलब दुनिया कलयुग है, कलयुग दी अंदर किहो जे आउणगे लोक, कली अंदर नानका जिन्हां दा अवतार, पुत जनूरा धी जनूरी, जोरू जिन्हां दा सिकदार। इहो जे लोक होणगे ते इहो जे लोकां नूं इहो जे लोक ही पसंद करनगे। मैं हैरान होना कई बारी इसे दे उत्ते चंगियां गल्लां भी आउंदियां, उहदे वल कोई झाकदा ही नहीं, पुठियां गल्लां वल भज जांदे आ, क्योंकि मन दा सुभाअ है नीवें नूं बड़ी छेती डिगदा, उच्चा चढ़ाउणा बड़ा औखा है। कहो सतनाम श्री। खैर मनोवृत्तियां उत्थे रखिए, ये चीज़ां तां जपजी साहब दे तिल मात्र भी बराबर नहीं पहुँचदियां। जोर ला ला के बच्चियां नूं बाणी नाल जोड़ना पैंदा ते पुठे पासे तां जदों मर्जी ला दिओ। बाणी नाल जोड़न वास्ते बहुत उद्यम हो रहे हैं, सिख संगतां वल्लों इनाम दिते जा रहे हैं ताकि बच्चे इस पासे लग जाण। ते उन्हां चीज़ां नूं बहुत दुनिया घट देखदी आ, घट चकदी आ, घट प्रमोट करदी आ। पर जिहड़े जवाक छोटा बच्चा दिने जदों छोटा हुंदा है ना, जदों माँ प्यो दे मारदा है, जां छोटा जिहा बच्चा दाड़ी च हत्थ पा लैंदा है, जां छोटा बच्चा गालां कढ़दा है, माँ प्यो कहंदा किड्डा सोहना लगदा है। ये नहीं पता भी वड्डे होए दी यही आदत बन जाए, फिर तुसीं लड़ोगे भी तू गालां क्यों कढ़दा है, गवांढी भी लड़नगे। कहो सतनाम श्री। इस करके प्रमोट करो सच नूं, गुरबाणी नूं, गुरबाणी पढ़न वालियां नूं उच्चे चक्को, उन्हां दा ख्याल करो। जे तुसीं कुछ खटना है आप भी सिखो ते होरां नूं भी सुनाओ। इस करके गुरु प्यारिओ ये महिमा जपजी साहब जी की सतगुरु पातशाह जी ने बख्शिश की आ। महिमा बरनी अल मैं कहे ना जाए मुझ मंद, मेरी मत एडी नहीं है, मेरी मत थोड़ी है। मैं जिन्ने क जपजी साहब की महिमा भाई संतोख सिंह कवि ने लिखी है, खैर
ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਆਪਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਿਮਾ ਇਸ ਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵੀ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਮਨ ਮੂਰਖ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜਪ ਸੇਵ, ਜੇ ਕੋ ਚਾਹੇ ਮੁਣ ਜਣ ਦੇਵ। ਓਏ ਮੂਰਖ ਮਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਹੁਣ ਆਪਾਂ, ਓਏ ਮੂਰਖ ਮਨਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਕਰ, ਸਿਮਰਿਆ ਕਰ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਦੇਵ, ਸੋ ਦੇਹੀ ਭਜ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਲੋਚਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਕਿਤ ਬਿਤ ਹੋਵੇ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖੀ ਮਗ ਲੇਹੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਨਰੂ ਮਰੈ ਨਰ ਕਾਮ ਨ ਆਵੇ, ਪਸ਼ੂ ਮਰੇ 10 ਕਾਲ ਸਵਾਰੈ। ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕੀ ਗਤ ਮੈਂ ਕਿਆ ਜਾਨੋ, ਮੈਂ ਕਿਆ ਜਾਨੋ ਬਾਬਾ ਰੇ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ? ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਪਸ਼ੂ ਚੰਗੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਡ ਚਮੜਾ ਮਾਸ ਆਦਿ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾਗਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਅਗਲੇ ਚੱਕ ਕੇ ਅੱਗ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਨੱਪ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖੀ ਮਗ ਲੇਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਜਪੇਗਾ ਉਹੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਸਾਹਮਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਪਿੰਜਰਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਆਖਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਡੋਲ ਕੇ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਮਤ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਕਿੱਥੇ? ਮਤੀ ਦਾਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਰਾ ਰੱਖਿਆ, ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਮਤੀ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੌਲੀ ਚਲਾਓ। ਜਲਾਦਾਂ ਨੇ, ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਡਰ ਗਿਆ, ਪੀੜ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਹੌਲੀ ਚਲਾਓ ਆਰਾ, ਮੈਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਪਈ ਆ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਸਿੱਖਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਏ। ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਭਾਵੇਂ ਕੱਟ ਵੀ ਦੇ ਨਾਰੇ ਨਾਲ, ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚੋਂ ਪਾਠ ਪੂਰਾ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਠੰਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ। ਕੀ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ? ਉਹ ਮੁਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਰੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਰਾਮਾਤ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਆਰਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, 2 ਫਾਕੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਲੱਕੜ ਨਾਲ ਬੰਨੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਬੰਨੀ ਗਲੀ ਫਾਕੜ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖੀ ਮਗ ਲੇਹੀ, ਉਹ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸੇਵ ਕੱਟੇ ਜਮ ਫਾਸੀ। ਜਪਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਂਸੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਹੁਰ ਮਿਲੇ ਪਦ ਵੀ ਅਬਨਾਸ਼ੀ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਪਦ, ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਐ ਬਿਨਾਸ਼ੀ, ਕਦੇ ਬਿਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸੋ ਹਰ ਜਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਸ ਸੰਜੋਗ ਚਾਹਿਤ ਜੇ ਸੋਈ, ਤੁਮ ਕੋ ਤੋਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਭਲਿਓ ਦੁਨੀਆ ਦੇਵਲੋਕ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਇਹ ਸੰਜੋਗ ਭਾਲਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਣੀਏ ਮਨੁੱਖ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਲੈ ਕੇ ਉਧਾਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਹ ਲੋਚਦੇ ਆ ਸੋਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀਏ? ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੰਮੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਗੁਰ ਘਰ ਜਨਮੇ, ਪਹਿਲਾ ਜਨਮ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ 'ਚ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲੇ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਰ ਵੀ ਸਫਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰ ਘਰ ਜਨਮੇ ਗਵਨ ਮਿਟਾਇਆ ਅਨਹਦ ਰਾਤੇ, ਇਹ ਮਨ ਲਾਇਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਿਆ ਕਹੋ ਬਣਾਈ, ਹਵੈ ਅਬ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਦੁਖਦਾਈ। ਸਿੱਖੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ, ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਡਾਕਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਯਾਰ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਚੱਲ ਲੈਣੀ ਆ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਓੜ ਪੋੜ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਜੁੜ ਜਾਓ ਨਾ। ਬਲਕਿ ਬਾਣੀ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰਤਾ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਚੰਗੇ ਮਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਦੇ ਆ ਮਰੋ ਛੇਤੀ। ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਦਾ ਸੰਦਾ ਸੰਗ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਔਖਦਾਏ ਰਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਖਲੋਇਆ, ਜੋ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮ ਸਕਰਮ ਹੋਏ ਪਸਰਿਆ, ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸਾ ਪਾਪ ਤਨ ਤੇ ਖਿਸਰਿਆ। ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਭੱਜਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਧੋਗਤੀ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਦੁਖਦਾਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇਸ਼ਨ ਪਛਤਾਵੇ ਮਲ ਹਾਥਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਪਛਤਾਏਗਾ ਹੱਥ ਮਲ ਕੇ। ਹਮ ਕਿਉਂ ਖੋਇਓ ਜਨਮ ਅਕਾਥਾ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ। ਨਰ ਤਨ ਦੁਰਲਭ ਇੱਕ ਇਹ ਪਾਇਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੁਰਲਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਭੇਖ ਬਣਾਇਓ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਮਿਲਿਆ। ਸਿੱਖੀ ਭੇਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਤੀਜਾ ਕਲਯੁਗ ਕੋ ਹੈ ਕਾਲਾ, ਤੀਜਾ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਉਤਮ ਜੁਗਾ ਮਾਹੇ, ਇਹ ਕਰ ਕਰੇ ਸੋ ਇਹ ਕਰ ਪਾਹੇ। ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਫਲ ਮਿਲਦਾ, ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਤੀਜੋ ਕਲਯੁਗ ਕਹੇ ਕਾਲਾ, ਥੋੜੀ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਹੋਏ ਦਿਆਲਾ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਿਆਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੱਲ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਤੇ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਚੱਲ ਯਾਰ ਦਿਓ ਜਾ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਜੀ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਿਆਜ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਚੱਲ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਮੂਲ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਬਾਕੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਜੋ ਕਲਯੁਗ ਕੋ ਹੈ ਕਾਲਾ, ਥੋੜੀ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਹੋਏ ਦਿਆਲਾ। ਐ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜੇ ਚੁੱਕ ਜਾਈ, ਜੇ ਆ ਸਮਾਂ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹੋ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਐਸੋ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜੇ ਚੁੱਕ ਜਾਈ, ਚੜ ਕਰ ਮੇਰ ਸਾਤਲ ਪਾਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਭਾਵ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਮਾਂ, ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਮਝ ਲਓ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ। ਜੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਹੋ। ਪੌੜੀ ਦਾ ਉਤਲਾ ਡੰਡਾ ਸਮਝੋ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਹੱਥ ਚੋਂ। ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਡਿੱਗਦਾ? ਜਿੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ? ਸਾਇੰਸ ਯੁੱਗ ਤੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਯੁੱਗ ਤੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਮਝੋ ਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਜਪਜੀ ਕੰਠ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਰਟੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੰਠ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਟਿਆ ਕਰੋ, ਗਾਇਆ ਕਰੋ। ਬੱਚੇ ਰਟਦੇ ਆ ਨਾ ਪਾਠ ਨੂੰ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ, ਇਵੇਂ ਰਟਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਮੂੰਹ ਜਵਾਨੀ ਯਾਦ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਚੱਲ ਸੋ ਚੱਲ ਚੱਲਣ ਦਿਓ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਲਮਲ ਕੱਟੈ, ਸਣੇ ਸਣੇ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ। ਗਤ ਪਾਵੈ ਬੰਧਨ ਖੋਏ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਪਦੇ ਜਪਦੇ ਮਨ ਤੇ ਰੰਗ ਚੜ ਜਾਣਾ। ਰੰਗ ਲਾਗਤ 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 ਹੈ, ਭਉ ਭਾਗਤ 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 ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਰੰਗ ਚੜ ਜਾਣਾ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਗਤ ਪਾਵੈ ਤਾਂ ਬੰਧਨ ਖੋਏ। ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਜਾਣੇ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਅਭਿਆਸ ਕੀਓ ਨਰ ਤਾਹੀਂ, ਰਹਿ ਨ ਕਰਨੇ ਕਿਰਤ ਕਛ ਤਾਹੀਂ।
जिन्हां ने जपजी का अभ्यास कर लिया, शब्द का अभ्यास कर लिया, उन्हां वास्ते कुछ भी करना बाकी नहीं है, उन्होंने सब कुछ कर लिया। ये सी जपजी साहिब जी का महात्म महिमा जो गुरुआं ने अपनी बाणी राही भी दसी है, अपने बचना राही भी दसी है। तो विचारां इत्थे रोकदे हां, अगलियां विचारां अगली बाणी चलदी है लड़ीवार दे विच रह रस सो दर की पौड़ी। ये विचारां आपां अगले दीवाना विच सरवण करांगे। इत्थे रोकण दी आग्या बख्शो। बोलदियां नेकां अखर बाद घाट हो जांदे, सिख संगतां दे सतगुरु बख्शण योग है, बख्श लैना जी। समाप्ति करिए, जपजी साहब नाल जुड़िए, वध तों वध इस कंठ करके इसनूं जपदे रहो। बहुत सारे महापुरुष होए है जिन्हां ने जपजी साहब दे 100 पाठ रोज़ करने। जब कंठ हो जाता फिर तो 7-8 मिनटां विच हो जाता। कोई सतनाम सी शुरुआत विच 15 मिनटां च हो जाता। गुरु कृपा करन सानू अपनी बाणी नाल जोड़ लैन। बोलदियां नेकां अखर बाद घाट हो जाते। सिख संगतां दे सतगुरु बख्शण योग है, बख्श लैना जी। समाप्ति करिए। बुलाओ फतेह पाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।